हम लोग so as I was saying, we will like continue with this topic. The topic is findings, this one, general solution to an equation of trigo, like sin x equal to half, cos x equal to root 3 by 2, general solution, and inequality as well, and then solving several questions. Like there are these 4 questions, and we'll discuss how to get the solution to these questions later on. Okay, so first we will learn from the very basic how to find solution to equations and inequations of trigo. All right, so let me rub this and we'll start with this one. So the topic today is trigo equations and inequations. I guess like the board is visible to all of you, right? So let's continue with this one. We'll study this topic in a phased manner. First of all, we'll study about angles. Angles में हम लोग कैसे study करेंगे? Angles में सबसे पहले हम लोग study करेंगे single angle. I'll take things from very basic to the point, to the last point. So I'll start from the very basic, which is single angle. Single angle मतलब क्या हो गया? Suppose कर लो तुम्हारा कभी solution सिर्फ और सिर्फ ये angle आता है, which implies you get the solution as 0 or 2 pi or 4 pi or minus 2 pi. All of these are solution to this particular angle. Okay. So what should be the general term for this angle? 2n pi. 2n pi. 2n pi. Correct. So this can be written as 2n pi. In a similar way, suppose we have this angle, this one, 2n plus 1 pi. Perfect, absolutely. कभी-कभी mistake में बच्चे क्या बोल देते हैं minus 2n pi, मतलब vector की तरह सोच जाते हैं. But obviously things are different here. It's like if this is 2n pi, ये वाला जो एंगल आता है पहली बार आता है pi, उसके बाद 3 pi, फिर 5 pi, नेगेटिव साइड से देखोगे तो minus pi. So it's always an odd multiple of pi, which implies इस एंगल को कैसे सोचना चाहिए? 2n plus 1 times pi. 2n plus 1 can be negative odd or positive odd depending upon n. So this is 2n plus 1 pi. In a similar manner, if I draw this angle, what should this angle be? 2n plus 1 pi by 2. Correct. 2n pi plus pi by 2 की तरह इसको सोच सकते हैं. क्यों? 2n pi से हम यहाँ पहुंच गए. Yes. Price कॉमन ले लेंगे pi by 2 या फिर pi कॉमन ले लेंगे. इसको मैं ऐसे सोच सकते हैं 2n plus half times pi. All right. So इसी तरीके से नेगेटिव वाला भी सोच सकते हैं, कोई और एंगल भी सोच सकते हैं. So एक उसमें से कोई कर लेते हैं. Let us assume I draw this angle, which is at pi by 4 to 2n pi. Then this angle must be written as 2n pi. 2n pi plus pi by 4. Pi by 4. सबको समझ में आ गया single. Okay. Now after this single angle, we'll go to 2 angles or 3 angles. तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं. Just to give clarity to what you people were asking, what you were saying was कि एंगल को किस तरीके से देखना है, तो एंगल को इस तरीके से देखना है. Just to give clarity, I guess all of you understand this one. कि हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज बढ़ेंगे. तो सपोज कर लो मेरे पास ये एंगल आया और इससे सपोज कर लो ये θ1 है and say this is alpha. So this angle must be θ1 plus alpha, right? And this angle can be, say this is θ2, then θ1 is θ2 minus alpha. Okay, इधर गए माइनस, इस साइड गए मतलब काउंटर क्लॉकवाइज इस तरीके से गए तो प्लस करेंगे एंगल को. So in case I have got this angle and say this is say 30 degree or say pi by 6, I can write this particular angle as pi plus pi by 6, है ना. pi से यहाँ पर है, फिर उसके बाद pi by 6 से आगे गए. In general 2n plus 1 times pi कर दिए यहाँ के लिए, उसे plus pi by 6 करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा. I guess all of you understand this one now. Okay, so I'll rub this one and we'll carry on with like multiple angles here. So next is multiple angles. And integer मतलब positive negative दोनों हो सकते हैं. Just एक second. आप फिर से बोलो क्या बोल रहे हो? यहाँ पे n positive negative दोनों हो सकते हैं. n positive, n is an integer. वहाँ पे मुझे साइड में लिख देना चाहिए था n belongs to integers in all of them. ठीक है? मैं इसमें मोस्टली सब में अंडरस्टैंडिंग हमारा नेचुरली हो जाएगा कि n belongs to integer. जो मैंने मिस कर गया बट मुझे लिखना चाहिए था वो चीज. n belongs to integers in all the cases. इसको हटा रहा हूँ अभी ये अंडरस्टैंडिंग के लिए था. Let's come down to multiple angles. Now multiple angles में मैं कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा. जैसे सपोज कर लो in a question my angle can be this one as well as this one. मतलब इधर आएंगे तो भी काम चल जाएगा, इधर आएंगे तो भी काम चल जाएगा. जैसे एग्जांपल sin θ equal to 0.
sin theta equal to 0 is both at 2n pi as well as this odd multiple of pi. दोनों का एक combined answer मान लो मैं लिखना चाहता हूँ. Okay? n pi. n pi. N pi, what it does is, in case I combine both these angles, I can write as 2n pi. Why? Because n को मैं 1 डालूंगा तो इधर आ जाएगा, n को 2 डालूंगा तो वापस इधर आ जाएगा. Which implies if I keep changing n, I can get all varieties of angles of these two varieties. So इनको combine करके मैं n pi भी लिख सकता हूँ. Alright, if n is even, I'll reach here. If n is odd, I'll reach here. If n is even, I'll reach at this point. If n is odd, I'll reach at this point. ठीक है, तो ये even के लिए हो गया, ये odd के लिए होगा obviously. Okay? So similarly, I will try to write multiple angles. तुम लोग को बताना है कि इसको किस तरीके से लिखेंगे, तुम लोग खुद ही सोच के बताना. So first is this one. Second, suppose I have this angle, which is let's say pi by 6 to 0, and similarly I have this angle, which is also at same angle. These two angles are equal. तो इन दोनों का combined form क्या होगा? pi plus pi by n pi plus pi by 6. pi by 6. Okay, just to clarify, these two angles are concerned here, are of concern here. So like इन दोनों का combine करके तुम लोगों ने सही बोला है n pi plus pi by 6. Now let's understand this one in bit more detail. n pi plus pi by 6 क्यों बोल रहे हैं? Because n pi से या तो हम यहाँ रीच करेंगे या यहाँ रीच करेंगे. दोनों केस मुझे प्लस करके वो मिल रहा है. So the answer must be n pi plus pi by 6. Once I'll get here, the other time I'll get here. All right, perfect. Suppose I want to combine these two. Okay, I want to combine say this angle and this angle. So this is at pi by 4 and this is also same angle at minus pi by 4. तो इन दोनों को लिखने का कुछ एक फॉर्मूला तो नहीं चाहता हूं मैं. 2n pi. 2n plus minus pi by plus Plus pi. minus pi by plus 4. minus pi n by power 4. sir minus 1 power n into plus pi by 4. मैं दोनों फॉर्म पे आऊंगा, दोनों फॉर्म पे आता हूँ. जस्ट एक मिनट रुक जाओ मुझे. बहुत लोग जो बोल रहे पहले उसको n pi plus minus pi. Plus minus आएगा. Plus minus आएगा. ठीक है. इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि एक फॉर्म मतलब प्लस माइनस हमें यूज करना पड़ जाता है. 2n pi से हम लोग यहाँ पे रीच करेंगे, सब प्लस करेंगे तो वहाँ एंगल आएगा, माइनस करेंगे तो ये आएगा. करेक्ट. नाउ somebody saying about n pi plus minus 1 to the power n. मैं उस पे रिलेटेड पहले मैं कुछ एक चीज बता देता हूँ, फिर मैं इसको अभी हटा नहीं रहा हूँ. तुम्हारे क्वेश्चन को मैं वापस लाऊंगा, तुम्हारे पॉइंट को वापस लाऊंगा, जस्ट टू बी इन ऑर्डर्ड फैशन. ओके, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट. मैं इस पे आता हूँ. Say suppose कर लो I want to get these two angles. This is one angle, this is another angle. Say this is pi by 6 from here, and this is also same angle. I want to end up at these two angles with a formula. How can I do that? 2n plus half 2n pi plus 1 pi plus by minus 1 power to the n. minus Sir, 5 pi by 6. minus 1 power n to the. ठीक है. मुझे दो आंसर्स दिख रहे हैं. मैं दोनों आंसर को इलस्ट्रेट करता हूँ. दोनों राइट है, लेकिन दोनों को समझना जरूरी है कि why do we take one form, why do we take other form. Okay, so suppose we end up at these two angles. जैसे sin x equal to half, sin x equal to half will end up at this angle as well as this angle, है ना. दोनों सेम एंगल इस साइड से रहेगा, तो sin x equal to half ends up at these two angles. Now उसको जनरल फॉर्म में लिखना है, तो उसको तुम लोगों ने जैसे पहले बताया, I would also prefer the same form which is this one. कि मैं क्या करूंगा, इसके मिडिल में चले जाऊंगा. दोनों का मिडिल कौन सा, ये. ठीक है, इसका मिडिल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2n pi plus pi by 2. ठीक है, इसके मिडिल पे चला गया. नाउ दिस एंगल इज मतलब पीछे आकर के मिलेगा, ये वाला एंगल हमको ज्यादा आगे आकर मिलेगा. पीछे कितना जाना पड़ेगा इसमें, pi by 3, आगे pi by 6. so what I will do is plus minus pi by 3 and we'll get to the answer. Okay, now Anirudh was pointing at something, उसको भी मैं थोड़ी देर में ले आता हूँ. बट लाइक इसमें समझना अच्छे से क्या चीज है. व्हेन वी आर सॉल्विंग क्वेश्चंस, लाइक अभी तो ठीक है, अभी हम उन क्वेश्चंस पे आए नहीं है. मैंने थोड़ा इलस्ट्रेट किया था, स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस दिया था, तुम लोगों ने ट्राई किया है. बट से व्हेन वी आर सॉल्विंग क्वेश्चंस, इवेंचुअली यू विल फाइंड दैट दिस फॉर्म्स टेक ग्रेटर प्रेसिडेंस. मतलब ये ज्यादा आसान हो जाता है सॉल्व करना, इससे हमको डील करना बहुत आसान दिखता है क्वेश्चन, स्लाइटली मोर कंपेयर टू द अदर फॉर्म व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइन. अब साइन कॉस टैन इस पे भी मायने नहीं है, बट ठीक है, मेरे ख्याल से सब लोग समझ रहे हैं कि साइन में हम लोग को इस टाइप के एंगल्स मिलेंगे. सो सपोज कर लो कि सबसे पहले हम वो स्टैंडर्ड फॉर्म को समझते हैं और क्यों वो उसको लिखते हैं वो भी समझने का ट्राई करते हैं. एंड दैट इज आल्सो अ ब्यूटीफुल फॉर्म. ओके, सो बहुत लोगों ने इसका आंसर उस फॉर्म में नहीं किया है, तो आई विल गिव यू सम टाइम, से 1 or 2 minutes, और उसमें तुम लोग सोच के बताने का ट्राई करना कि इन केस आई वांट टू राइट द आंसर यूजिंग n pi से मैं प्लस या समथिंग कुछ करना चाहता हूँ. n pi, आई डोंट वांट टू यूज 2n pi. तो n pi से हम लोग इन दोनों एंगल्स पे पहुंचना चाहते हैं. ऑब्वियसली pi by 6 हम यूज कर सकते हैं, so on and so forth. कोई बोलना मत, अभी 1 मिनट बाद जो पूछूंगा, जिन लोगों ने अभी तक नहीं सोचा उसमें से कोई ट्राई करके बताना. दैट वुड बी मच फेयरर एंड दैट वुड बी बेटर. ओके,
सो लाइक व्हाट आई वाज सेइंग वाज n पाई प्लस क्या होना चाहिए, सोचो, सोच के मुझे बताओ कि इसको लिखने का तरीका क्या होगा आफ्टर 1 मिनट ओनली व्हेन आई से, ओके, टेक सम टाइम। ओके, लेट्स गेट बैक टू दिस वन। जिन लोगों ने पहले नहीं सोचा होगा उन लोगों में से बताओगे तो थोड़ा ज्यादा फेयर होगा, एटलीस्ट कम से कम सबकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी जिनको नहीं क्लियर होगा, ठीक है, तो ट्राई करो। सो वैसे ही मतलब देखना था कि प्लस माइनस पाई बाय 6 आएगा और तो उसका minus n one- से भी कुछ रिलेशन निकालना था। -1 की पावर से प्लस मैंने 1 की वो पावर देखा था n कि कर सर दी। जैसे कि उस साइड पे n ऑड होता है, जहाँ पे n ऑड होता है उधर से माइनस आ रहा है, और जिधर इवन होता है उधर से प्लस आ रहा है। सर तो तो -1 ऐसा जो की पावर एक्सप्रेशन हमें देगा वो आएगा -1 to the end। परफेक्ट, And- एब्सोल्युटली राइट है, उसे रिक्वायर्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे जो एंगल दे रखा है। यस सर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, मेरे ख्याल से सब लोग इस पार्ट को समझ रहे हो। सी वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इज मिसिंग, तुम लोग चलो उसको मैं देख लेता हूँ जो मिसिंग रहेगा। बट एनीवेज व्हाट आई वाज सेइंग वाज n पाई में होता क्या है कि n इवन से हम लोग यहाँ आते हैं, n ऑड से यहाँ पर आते हैं। So when n is even, I need to add, and when n is odd, I need to subtract from that particular angle. So it must be -1 to the power n pi by 6. Now why does it work? Once again observe करो, if n is even, we end up at this angle. और n even है तो ये -1 to the power even में ये +1 बन जाता है, तो इस एंगल में pi by 6 ऐड हो गया। But when n is odd, I end up at this other angle, और उस केस में -1 to the power odd becomes minus, so उस केस में हम subtract कर ले रहे pi by 6, so n pi minus pi by 6 हो जा रहा है। Alright, so जो तुम लोग बोल रहे हो बिल्कुल सही है। So n pi plus -1 to the power n pi by 6 is another form by which we can write. Now the difficulty, slightly difficulty with this one is कि मान लो तुम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हो, तो तुमको इसके बाद n के दो केसेस लेके सॉल्व करने पड़ेंगे, which will come down to this one. So why not directly write that form and solve the question? So like जब सॉल्व करने का टाइम आता है तो ये प्रेफरेबल स्लाइटली हो जाता है। इन अदर टाइम्स, इन अदर केस, अच्छा किसी का मिस हो गया था, आई गेस लाइक ज्यादा कुछ मैंने नहीं बताया, मैंने सिर्फ ये बताया था कि यहाँ पर ये वाला फॉर्म क्यों होगा, ये समझ रहे होगे। n ऑड है तो हम लोग इधर आएंगे, n इवन है तो यहाँ आएंगे, इधर ऐड हो रहा है इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ऑलराइट, सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म तब भी क्यों मानते हैं, जब साइन का हम स्टडी करेंगे, विल सी दैट इन एनसीईआरटी बुक्स एंड अदरवाइज दिस इज कंसीडर्ड टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म। हर जगह स्टैंडर्ड फॉर्म इसी को मानते हैं, मोस्टली बिकॉज ये डायरेक्टली पाई बाय 6 पे यूटिलाइज कर रहा है, और इसमें देखोगे तो हम पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6 यूटिलाइज कर रहे हैं। So this seems slightly more preferable, looks elegant, nothing more. Otherwise, like both are correct form. जो दोनों में से in case option में दिया रहेगा तो दोनों को पिक करना पड़ेगा. Both are correct form. Both lead to the same angles. Okay? So we'll see that later on. Questions कैसे सेट हो सकते हैं, क्या चीज हो सकता है. But अभी इन सब angles को समझाने के बाद एक दो और मैं समझा देता हूँ. उसके बाद हम लोग sin, cosine, tan को understand करेंगे. So after these four, let me show you few more angles जो कि हम लोग पहले भी डील कर चुके हैं. जैसे मान लो मुझे ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल चारों साइमल्टेनियसली चाहिए, मतलब एक सिंगल फॉर्मूले से चाहिए, तो कैसे होगा? n pi by 2। n pi by 2। ठीक है, ये चीज पहले भी देख चुके हैं। एब्सोल्युटली राइट। जब हम लोगों ने लास्ट क्लास में वो देखा था कि 3 थीटा वाला जो फॉर्मूला किया था, 5 थीटा वाला जो किया था, sin 5 थीटा इक्वल टू समथिंग अंडरस्टैंड करने का ट्राई किया था, उसमें भी देखा था सिमिलर टाइप का फॉर्मेशन था जिसमें हम पेंटागन एंड ऑल डिस्कस किए थे। एनीवेज, नाउ इनको हमको कंबाइन करना था। एक तरीका क्या है कि ये आफ्टर पाई बाय 2 का मल्टीपल है, पाई बाय 2 का 0 टाइम्स ये हो गया, पाई बाय 2 का 1 टाइम्स ये, पाई बाय 2 का 2 टाइम्स ये, पाई बाय 2 का 3 टाइम्स ये, पाई बाय 2 का 4 टाइम्स ये। So we can write this one as n times pi by 2. Absolutely right, where n belongs to integer in all these cases. Okay, so तुम लोग सब सही बता रहे हो। So multiple angles हम लोग इस तरीके से डील कर सकते हैं, और भी छोटे मोटे पॉइंट्स रहेंगे। But now let's get down to sin theta, cosine theta, tan theta, उनको अंडरस्टैंड करके हम इक्वालिटी इनइक्वालिटी पे चले जाएंगे। ओके, सो मैं नेक्स्ट वाला पार्ट लिखता हूँ, लेकिन उससे पहले इसको नोट डाउन कर लो सब लोग। Okay, so for the next part, what we'll do is we'll understand sin theta, cosine theta, tan theta, and so on and so forth. ठीक है, इसलिए मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ t ratios, trigonometric ratios। इसमें सबसे पहले आया था sin theta। Now say sin theta is equals to half। एग्जाम्पल अलग से लिख देता हूँ। Say sin theta is equals to half। इसको हम कुछ ऐसा मान लेते हैं, say sin of alpha, where alpha is say pi by 6 or 5 pi by 6, कोई भी एंगल ले लो। अभी for the ease of things, let us assume alpha to be pi by 6, है ना? जैसे इस केस में alpha equal to pi by 6 मान सकते हैं, ठीक है? तेरा आवाज क्लियर नहीं आ रही। फिर आपकी आवाज और वीडियो दोनों क्लियर बहुत नहीं आ लैग आ रहा है। हाँ, see internet connection is unstable यहाँ दिखा रहा है, just एक मिनट होल्ड कर लो। I guess it should be okay now, right? Yes, Yes, correct। sir. Yes sir। ठीक है, तो sin theta equal to half sin, that is equal to sin alpha।
सिंपल से इसको हाफ के लिए हम अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे तो हाफ कहाँ पर आएगा, यहाँ और यहाँ, राइट, बहुत ऑब्वियस है। सो इन केस हम इन दोनों एंगल्स की बात कर रहे हैं विच इज π/6 मोर देन दिस एंड π/6 लेस देन दिस, तो हम लोगों ने इसके लिए ऑलरेडी देख लिया है कि इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा, n π प्लस -1 to the power n into π/6. The same thing can also be written as 2n π प्लस π/2. इससे क्या हो जाएगा, इस मिडिल एंगल पे आ जाएंगे प्लस माइनस π/2. प्लस माइनस पावर। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं बट स्टैंडर्ड फॉर्म इसको मान लिया जाता है एनसीईआरटी में, ओके, एंड अदरवाइज लाइक स्टैंडर्ड फॉर्म इसको मानते हैं। एंड सिमिलरली वी कैन डू फॉर कोसाइन एंड tan थीटा, so like as I was saying, हम लोग स्टार्ट किए थे लास्ट टाइम इक्वेशंस, इन इक्वेशंस आई गिव यू क्वेश्चंस बट लाइक वी आर गोइंग थ्रू थियरी के बाद उन क्वेश्चंस को हम टैकल करेंगे, ओके। सो थियरी में हम लोगों ने ये कर लिया था दैट एंगल्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंगल एंगल, डबल एंगल और मल्टीपल एंगल्स, उसको रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके। हम लोग अभी साइन कर रहे थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इस तरीके से बढ़ने वाले थे। तो साइन थीटा मैंने कंप्लीट कर दिया था या नहीं? साइन थीटा सर, और हाँ हो ही गया था सर, हो ही गया शायद। तो हो गया था मैं वो पिछले इससे कंप्लीट हो गया था, बट एनीवेज फॉर्मूला एक बार कंप्लीट कर लेता हूं। मैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा लिख देता हूं। लेट मी बी स्लाइटली फास्टर थ्रू दिस प्रोसेस बिकॉज़ इट वाज एनीवेज टोल्ड इन द प्रीवियस सेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आएगा sin theta equal to sin alpha. Example, suppose करो sin theta equal to half है, this can be written as sin of any angle से π/6. Now how do we deal with this one? इसमें ऐसे करते हैं, हमको पता है कि जो π/6 पे आएगा वही सेम यहाँ पर भी आएगा, right? Same thing people do with graphs as well. I have no problem, but Yes, sir. personally I have felt कि later on जब अच्छे questions आते हैं ना, graph से slightly faster, slightly more accurate this method हो जाता है। पर्सनली मैं अपने टाइम से इसको बहुत पसंद करता हूँ, खुद ही ऐसे सोचता था, इसलिए मैं एग्जाम टाइम में बाद में देखता हूँ दिस बिकम स्लाइटली मोर फेवरेबल। सो आई एम नॉट आस्किंग यू टू चेंज योर मेथड, बट इन केस तुम डेवलप नहीं किया तो दिस इज गुड मेथड टू डेवलप, थिंकिंग थ्रू क्वाड्रेंट्स रादर देन थिंकिंग थ्रू ग्राफ्स, ओके। एनीवेज, बट लाइक आइडियली, लाइक सही में बोलूं तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, स्टूडेंट्स किसी भी तरीके से बढ़ जाते हैं, ओके, एंड दे गेट टू राइट आंसर। सो दिस इज π/6, दिस इज 5π/6। तो इसको हम लोगों ने लास्ट टाइम रिप्रेजेंट करना सीखा था। थीटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो तरीके से। नाउ स्टैंडर्ड इज दिस वन, n π प्लस -1 टू द पावर n π/6 y, बिकॉज़ इफ n इज इवन तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ से प्लस हो जाएगा। इफ n इज ऑड यहाँ पर आएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, है ना, दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, करेक्ट, प्लस ये माइनस नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव का मतलब उल्टे डायरेक्शन चला जाएगा। सो दैट वे this covers both the cases and all these angles, right? This covers both of these angles, okay. So this is correct answer. This is considered to be the standard answer because maybe directly involves π/6, okay. But as you people only told last time and I had instructed कि बहुत बार क्वेश्चन सॉल्विंग मान लो करना होता है तो इसमें भी दो केस लेना पड़ेगा, n is odd and n is even, उसके अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ेंगे, तो there is always problem with that. So मतलब प्रॉब्लम ऐसे नहीं है, बट लाइक केसेस लेके आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो डायरेक्टली तुम ऐसे भी कर सकते हो कि थीटा को, ये दोनों एंगल को ऐसे लिख सकते हो 2n π plus π/2, which implies 2n π plus π/2 will reach here plus minus this angle, right? Plus minus π/2 minus π/6, which is π/3. So this is also fair representation of these angles. All right. So like I'll bring the board, bring this laptop here, so you can all see clearly. हाँ, anyway, so like लेकिन ऐसे कुछ खास डिफरेंस नहीं है, सही बताओ तो मतलब एक बार इधर भी केस लेना पड़ेगा तुमको, सिंपलीफाई करना पड़ेगा, इधर भी एक प्लस का केस या माइनस का केस लेना ही पड़ेगा। Personally, I slightly prefer this one, but technically there is not much difference between these two. So this is how sin theta works. Now let me get down to cos theta. ठीक है, सेकंड हो जाएगा cos theta equal to cos alpha. Example, cos theta equal to, इसमें भी मैं हाफ टाइप का कुछ ले लेता हूँ, सही, बट एंगल ऑब्वियसली अलग होगा, cos of π/3। तो हम लोग को देखना पड़ेगा हाफ कहाँ कहाँ आता है, एक π/3 में आएगा, बट वी नो दैट cos में होता क्या है, बेस अपॉन रेडियस, रेडियस इज ऑलवेज 1। तो बेस हाफ कहाँ पर होगा, बेस यहाँ पर एक बार होगा, एंड सिमिलरली नीचे जो ट्रायंगल बनेगा उसका भी बेस हाफ रहेगा, उसका भी बेस पॉजिटिव रहेगा। तो इसके लिए π/3 के लिए cos हाफ है,
तो -π/3 के लिए भी cos हाफ होगा। और इन दोनों एंगल को रिप्रेजेंट करने का सबसे आसान तरीका यही है, 2n पाई मिडिल में आ जाओ, प्लस माइनस π/3, प्लस π/3 से उधर आ जाएगा, माइनस π/3 से इधर आ जाएगा, प्लस π/3 से ये वाला, माइनस π/3 से ये पीछे। सो कोसाइन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वेरी इजी एंड ऑब्वियस रिप्रेजेंटेशन। tan का मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ बिकॉज सबको समझ में आ ही रहा है। थर्ड पार्ट, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा से दैट इज इक्वल्स टू, रहने बेसिक तरह से tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। एग्जांपल मान लो मैं ले लेता हूँ, tan थीटा इक्वल टू से √3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 किस पे आ सकता है, पॉसिबली π/3 पे, करेक्ट? π/3 करेक्ट। tan थीटा इक्वल टू tan π/3। अब क्लियरली हमको पता है कि जो tan यहाँ पर देगा, tan में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पर पॉजिटिव है। हमको पता है ऑपोजिट क्वाड्रेंट में भी इन केस मान लो मैं ये एंगल चूज करूंगा, यहाँ भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस सेम ही आएगा रेशियो, एंड मोर ओवर लाइक दैट विल आल्सो बी पॉजिटिव। तो tan थीटा इक्वल टू √3 इन केस यहाँ पर आ जाए तो सिमिलरली यहाँ पर भी आएगा, सिमेट्रिकली बोथ विल बी π/3 ग्रेटर देन दीज मल्टीपल्स। तो ऑब्वियसली इन दोनों को रिप्रेजेंट करने का हम सिंगल एंगल में देखे थे मेथड। सो इन दोनों को रिप्रेजेंट करने का मेथड क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू n पाई, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा प्लस अल्फा, यहाँ पे प्लस पाई देता है। प्लस अल्फा। बहुत बार मिस्टेक्स है, मतलब गलती से बच्चे क्या कर देते हैं इसमें कि n पाई प्लस माइनस π/3 कर देते हैं। नो ऑब्वियसली दैट इज रॉन्ग। इन केस n पाई प्लस माइनस π/3 देखोगे तो वो ऐसा हो जाएगा कि मान लो ये n पाई यहाँ से भी आ सकता है, प्लस π/3 यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस π/3 भी करना पड़ेगा। n पाई से यहाँ भी आ सकते हो, यहाँ से माइनस π/3 करोगे ये आएगा, प्लस π/3 करोगे ये आएगा। So like what is happening is n pi plus minus π/3, 1 2 3 4 n pi plus minus π/3. This gives all the four angles. Okay, this gives all the four angles rather than these two angles. तुमको हर समय क्या चाहिए कि n pi पे आके प्लस ही करना है, इधर पे आकर के भी प्लस ही करना है, आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं आना है। So like you have to do only n pi plus π/3 rather than n pi plus minus π/3. So this is wrong. This is correct. जो तुम लोग बोले थे absolutely correct. ठीक है? So 2 मिनट लेकर के इसको नोट डाउन कर लो, then I will carry on with like next part. इसको पहले नोट डाउन कर लो। So guys, Yes, sir. बोल रहा था कि अभी हम लोगों ने देख लिया कि tan, sin, cos इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। This is what we have seen. उससे पहले हम सिंगल एंगल, डबल एंगल रिप्रेजेंट करना सीख लिए। All we have been trying to do is acquaint ourselves with the coordinate system. That's it. है ना, जानबूझ के मैं टाइम स्पेंड उस पे इसलिए कर रहा हूँ कि हम विजुअलाइज करना वहाँ पे स्ट्रॉन्गर बना लें। तो ड्यू टू द टाइम स्पेंड व्हाट विल डू इज विल ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस नाउ, और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस करता है, किस तरीके से वहां से चीजें चेंज करती है और कैसे उसको सॉल्व करना है, एंड ऑटोमेटिकली विल अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। ओके, बट यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आई हैव सीन स्टूडेंट्स डूइंग लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स इन सम बेसिक क्वेश्चंस इन द एंड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वंस अगेन गुड स्टूडेंट्स हु एंड अप विद लाइक सिंगल डिजिट रैंक्स एज वेल, कि उन लोग भी जाकर इन क्वेश्चंस में मिस्टेक कर जाते हैं बिकॉज जो बेसिक पॉइंट्स होता है ना मिस कर जाते हैं, समाउ कुछ एक चीज मिस हो जाता है, कुछ एक रिजल्ट मिस हो जाता है, समथिंग हो ही जाता है इसमें। So let's try to be accurate in these kinds of questions. अभी जो तुम लोगों को क्वेश्चंस दिया बहुत टफ क्वेश्चंस है, बहुत लेंथी क्वेश्चंस है, वैसे नहीं आते, बेसिक से आते नहीं, बेसिक में भी गलतियां हो जाती हैं। ओके, लोनी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस तुम लोगों को मिल जाएंगे। So anyways, let's come down to this one. तो कुछ क्वेश्चंस हम रैंडमली लिखते हैं और रैंडमली सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, उसके बाद हम लोग उधर वाले जो पहले क्वेश्चन दिए थे उनको डील करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इक्वालिटी के क्वेश्चन देखते हैं। इक्वालिटी में जैसे सपोज करो मेरे पास ऐसा आता है sin थीटा माइनस हाफ, ओके, into cos theta minus √3/2 equal to 0. I am keeping the questions simple because ideas पहले learn कर लेते हैं। Once we know the right ideas, उसके बाद फिर हम लोग properly tougher questions पे deal करेंगे। How do we deal with this one? Both these angles are same, है ना, sin theta, cos theta, both these angles are same. So हम लोग करना क्या, या तो sin theta को हाफ बनाना है या cos theta को √3 बनाना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। अब देखते हैं, sin theta को हाफ बनाने का मतलब क्या हो गया। हाफ के अकॉर्डिंगली हमको पता है ये वाला एंगल आएगा, सिमिलरली ये एंगल आएगा, ये दोनों हाफ के अकॉर्डिंगली आएगा, है ना, π/6 एंड सिमिलर एंगल। √3/2 cos कहां पर रहता है, √3/2 cos कहां पर रहता है, तो सेम ऊपर और नीचे, वो बट लाइक तो हम लोग यहाँ पर से डबल एक कर देते हैं और यहाँ एक सिंगल, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन सेज इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 के लिए हम लोग को दिख रहा है कि वी हैव गॉट 4 एंगल्स हियर, इनफैक्ट 3 एंगल्स फाइनली, एक ये और एक ये, 3, और कहीं पे भी 0 हो जाए तो काम चल जाएगा। तो यहाँ पे 2 होना या 1 होना फर्क नहीं करता है,
यहीं पे जैसे ये एंगल आएगा तब भी 0, ये एंगल आएगा तब भी 0, ये एंगल आएगा तो तब भी 0। तो तीनों को बस हमको कंबाइन कर लेना है। नाउ इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू मेक अ कंबाइंड फॉर्मूला फॉर दिस वन। होता क्या है कि इन क्वेश्चंस में तुम्हारे पास ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि -π से लेके +π तक हाउ मेनी एंगल्स आर देयर, या -π से लेके +π तक जो जो एंगल आएगा उनका सम करो। ओके, ये बात समझ में आ रहा है? -π से +π मैंने छोटा कर दिया, हो सकता है -3π से +3π हो जाए, जो जो एंगल्स आएंगे उनको सम करो। तो क्या होता है, मान लो -3π से +3π होगा, we know that lots of angles will be there, बट उनका सम करना बहुत आसान है, बिकॉज इन दोनों का सम जब भी करने का ट्राई करोगे हमको पता है कि वी आर गोइंग टू रीच अ वेरी सिंपल रिजल्ट। तो वहां से सोच करके हम फास्टर कर सकते हैं, इजियर कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ टाइम्स व्हाट वी डू फॉर द सेम क्वेश्चन सारे एंगल्स निकाले जा रहे हैं ना, दैट इज नॉट राइट। ठीक है, तो आईटी देख रहे हो ना, सेम क्वेश्चन को कैसे ट्वीक कर दिया है, तुमसे थोड़ा सा स्मार्टनेस ढूंढ रहे हैं, बेसिक सॉल्विंग ढूंढ रहे हैं, बट ऑब्वियसली क्वेश्चन इज स्लाइटली मोर टफ, नॉट सो इजी। सो इनको सॉल्व करना तो बहुत इजी इक्वालिटी वाले केस में। इक्वालिटी वाले केस में सिमिलरली सपोज करो मेरे पास ऐसा आता है, इसमें मैं एक दो और चीज ऐड कर देता हूँ। सपोज करो डिनोमिनेटर में आता है tan theta minus √3, okay? Now tan theta minus √3 doesn't help because कोई भी यहाँ पे नहीं आ रहा, तो मैं काम करता हूँ tan theta minus 1/√3 कर देता हूँ, या √3 tan theta minus 1 कर देता हूँ, ऐसे करके। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन मेरे पास रहता, मैंने क्वेश्चन स्लाइटली चेंज कर दिया, अब मैं tan theta minus √3 डिनोमिनेटर में इंट्रोड्यूस कर दिया हूँ। Having done that, now we have to understand कि ये दोनों 0 होगा तो 0 होगा, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0, ओके? तो tan थीटा 1/√3 नहीं हो सकता, which implies हमारे पास ये एंगल भी चला गया, और इसके साथ साथ इधर मान लो हमारे पास कोई एंगल आता रहता तो ये भी चला गया, बट ये एंगल तो था ही नहीं कभी भी, ये एंगल तो था ही नहीं कभी, तो इसको ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा ही रहा हूँ, क्यों फालतू के एक एंगल को कंसिडरेशन में लाओगे। तो हमारे पास ये एंगल चला गया, ये तो था ही नहीं, अब आगे हमारे पास ये दोनों आंसर। तो हाउ डू वी कंबाइन दीज टू, इन केस मान लो एक फॉर्मूला ऐसे टाइम पास में पूछ रहा हूँ, एक फॉर्मूला बताओ, हाउ डू वी कंबाइन दीज टू? n pi minus -π/3 -π/6, right? yes sir yes sir -π/6 Yes, sir. n pi से हम यहाँ पे एंड अप करेंगे तब भी माइनस, n pi से जब यहाँ एंड अप करेंगे तब भी नेगेटिव, पीछे जाना है, सो इट्स n pi minus π/6। वंस अगेन इट्स नॉट +- π/6, ये एंगल हट गया, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये एंगल और ये एंगल बचा है, तो फॉर एवरी n pi वी हैव टू गो बैक, सो n pi minus π/6, दिस इज आल्सो n pi minus π/6, ओके? सो दैट बिकम्स द करेक्ट आंसर। सो ये सर चीज, इसके साथ हम π/2 भी तो करेक्ट आंसर गिन सकते हैं। अच्छा ठीक है, फेयर इनफ। देखो π/2 वो करेक्ट आंसर जो तुमने क्वेश्चन पूछा है ना, वो तुम इस कारण से बोल रहे हो बिकॉज़ tan थीटा वहां पे 1/0 टाइप का फॉर्म हो जाता है, इसलिए शायद बोलना चाहते हो, करेक्ट? यस सर। सर अगर tan थीटा बहुत बड़ा हो जाएगा फिर ऊपर तो 0 तो टोटल वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी। फेयर इनफ। अब इस बात को बहुत अच्छे से समझो और मिस्टेक कभी नहीं करेंगे इस पॉइंट पे आगे, ठीक है? लेकिन इसको अच्छे से समझते हैं बिकॉज हमारे जूनियर से समझो ये नोशन गलत होता आ रहा है, मैं बहुत बार स्टूडेंट्स का देख रहा हूँ कि गलत एक नोशन से हम बढ़ते हैं। सी इट्स लाइक, पहली बात 90 डिग्री पुट करना, 90 डिग्री विच इम्प्लाइज π/2 और सिमिलर एंगल्स, जैसे -π/2 π/2 3π/2 सब, मैं π/2 उसके लिए बोल रहा हूँ। π/2 पुट करने पे tan थीटा 1/0 फॉर्म हो जाता है, ओके? नाउ आई एम जस्ट सेइंग 1/0 फॉर्म हो जाता है, आई एम नॉट इवन सेइंग 1/0 हो जाता है, बिकॉज 1/0 इज अनडिफाइंड, खत्म, मतलब इट्स नॉट डिफाइंड। मतलब सपोज करो आई आस्क यू व्हाट इज tan ऑफ 90 डिग्री, यहाँ पुट करेंगे तो क्या, हाँ कोई बात नहीं, आगे के लिए भी क्लैरिटी। अच्छा कुछ दिक्कत आ रही है अब? ठीक है ना? हाँ सर लैग आया था सभी। अब ठीक है ना? अब ठीक है। ओके, so what I said was 90 डिग्री जैसे ही पुट करेंगे ये 1/0 फॉर्म होगा, बट ये 1/0 होगा नहीं बिकॉज 90 डिग्री टेक्निकली अनडिफाइंड है। यहाँ पर 90 डिग्री पे देखो tan होता क्या, tan ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल्स टू sin ऑफ 90 डिग्री अपॉन cos ऑफ 90 डिग्री, ओके? नाउ cos ऑफ 90 डिग्री इज 0, एग्जैक्टली 0। तो न्यूमरेटर कुछ भी हो, तुम tan ऑफ 90 डिग्री लिख ही नहीं सकते। tan ऑफ 90 डिग्री इज अनडिफाइंड, it's not infinite, it's not very huge, it's undefined, it's not defined mathematically, okay? बहुत सारे पॉइंट्स आएगा, धीरे समझना। tan of 90 degree is undefined, it's not defined, so you can never use that। हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत बार उससे एसेंस निकाल कर समझने का ट्राई करते हैं, एंगल कहाँ पहुंचना चाहिए, बट बोलना कि 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, वी कैन नॉट डू दैट, ओके? जैसे मैं इसी क्वेश्चन में एक मॉडिफिकेशन करूंगा, फिर देखेंगे उस चीज को।
Now suppose करो tan 90 degree equal to ये चीज लिखा मैंने. Now what happens if I write, say I 1 by tan, मान लो मैं x को लिखता हूँ 1 by tan theta, या t को मान लो, x से कंफ्यूज कर जाते हैं, t को लिखता हूँ 1 by tan theta. ठीक है. Now can we put theta as 90 degree here? Now can we put theta as pi by 2 here? No, Sin sir. हो जाएगा, No, cos sir. हो जाएगा. No, sir. We cannot put 90 degree or Yeah, sir. pi by 2 here also. We cannot do that. Simply because when we substitute pi by 2 as theta, this quantity becomes undefined. Now 1 upon undefined is undefined. Understand? It's not like कि फिर हम manipulate mentally कर लेंगे उसको, सोच के ऊपर ले जाएंगे, फिर हम सोचने का try करेंगे. This function breaks there. It's not right to put 90 degree here. It's not allowed to put 90 degree here on the left hand side. All those claims of this being a very huge value, all those things are wrong. Absolutely wrong. सर अगर हम इसको cos theta by sin theta लिख दे. Absolutely right. तुम इसको लिख सकते हो. देखो, सर टेंडिंग टू 90 कर दें. मैं वही बता दूं जो टेंडिंग टू 90 करना, इसको मैं सेकंड आंसर पहले इसको करता हूं. सर फिर sin theta by cos theta होगा. सर वो अगर मतलब सर वो ऊपर जाके cos theta by sin theta होगा. sin theta upon cos theta. ठीक. पर upon sin theta upon cos theta मैंने लिख लिया t को. Now इस sin theta upon cos theta में देखो क्या होता है, हमारे माइंड में आता है cos theta ऊपर चला जाएगा, 0 हो जाएगा. बट वो तो लिमिट आएगी ना, मतलब वो तो गलत लेकिन हम cos theta को ऊपर हम लोग सेंड कर रहे हैं, cos theta था नहीं ऊपर, करेक्ट. सो टेक्निकली हमारा वैल्यू क्या था, 1 upon something which upon 0. तो हमको ये वाला वैल्यू जो भी इवैल्यूएट करने का ट्राई करेंगे, इट कम्स आउट टू बी अनडिफाइंड. तो हम रूल को फॉलो ही नहीं कर पाते, इसको ऊपर ले जाने का हमारे पास मौका ही नहीं मिलता. व्हाई? बिकॉज़ इट इज अनडिफाइंड. मतलब हम सो टेक्निकली मैथमेटिकली इट्स फॉर्म 0. सर हम tan 1 upon tan theta को as cot theta भी तो लिख सकते हैं. 1 upon tan theta equal to cot theta is true for all those angles which are not like 0 or pi by 2. Otherwise 1 by tan theta को cot theta भी लिखना गलत है. Okay, sir. See, suppose somebody writes is tan theta equal to 1 upon cot theta, identical equation. Are these two same? These two are not. Because मतलब ऐसे नहीं, ऐसे इक्वल टू लिख दिया तो सेम हो गया, ऐसा नहीं. मैं मान लो लिखता हूँ f of theta equal to this one और g of theta को मैं लिखता हूँ 1 by cot theta. Is f of theta and g of theta identical? No, they are not identical. Why? Because इसमें तुम 0 पुट कर सकते हो, इसमें तुम 0 नहीं पुट कर सकते हो. इसमें तुम pi by 2 पुट कर सकते हो, लेकिन इसमें pi by 2 नहीं पुट कर सकते हो. एक मिनट, इसमें pi by 2 पुट कर सकते हैं क्या? इसमें भी pi by 2 1 upon cot theta होने के कारण इसमें भी नहीं पुट कर सकते हैं. बट एनीवेज इसमें 0 पुट कर सकते हैं, इसमें 0 पुट कर सकते हैं, 0 हो जाएगा. इसमें 0 जैसे ही पुट करने जाएंगे तो cos of 0 upon sin of 0 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, which is undefined. तो इसमें 0 अलाउड नहीं है, 0 अलाउड नहीं. उसी तरीके से इसमें n pi पुट कर सकते हैं, इसमें n pi नहीं पुट कर सकते. तो these two are not identical functions. बात समझ में आ रही है? मतलब हम Yes, कह sir. सकते हैं Yes, कि sir. pi by Yes, 2 sir. इसके अलावा भी डोमेन से रिलेटेड. अच्छा, किसी के पीछे इनके साउंड आता है तो म्यूट कर लिया बोलने के बाद, और शायद तुम्हारे साथ आ रहे हैं. बट एनीवेज व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि अदरवाइज बाकी सही है, तुम लोग काफी अच्छा मैनेज कर रहे हो, सही टाइम पे तुम लोग म्यूट कर दे रहे हो, एंड एवरीथिंग इज वर्किंग वेरी फाइन. सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज दीस टू आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शन. यहां पर tan थीटा में 90 डिग्री पुट करना अलाउड नहीं है. नाउ निवेश आस्क्ड कि यहां पर थीटा व्हेन दिस क्लोज बिकम्स गेट्स वेरी क्लोज टू 90 डिग्री, तो क्या? देखो, इवन इफ थीटा बिकम्स वेरी क्लोज टू 90, जितना भी क्लोज कर दो, एक समय में थीटा तो फाइनाइट ही रहेगा ना. कोई पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा के लिए तो फाइनाइट ही Yes, रहेगा. sir. When it's a very huge quantity, the thing does not become 0. The thing gets close to 0, but the thing is not 0. When you equate two quantities, they have to be equal. It's not like इसका एक close value निकालो, इसका एक close value निकालो, फिर दोनों को equate कर दो. नहीं, they have to be equal on both the sides. So even if theta becomes any kind of value, this becomes as huge as possible that you want to make. Doesn't matter. This left hand side is not 0. If it is not 0, it's not equal to right hand side. We can never write 10 to the power minus 10,000 is equal to 0. They are not equal. Okay? So whenever we equate things, they have to be exactly same. इसको 0 होना है, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है.
ठीक है आई गेस सर इसमें डाउट था, अगर हम ऐसे लिख दे जैसे थीटा टेंडिंग टू 90 सिर्फ ऐसे ही लिख दे तो भी गलत हो जाएगा? एब्सोल्युटली गलत है। देखो जब इक्वेट करो चीज ऐसे करोगे तो देखो क्वाड्रेटिक में देखोगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते चले जाएंगे, जीरो के आसपास तो बहुत एक्स पहुंच जाएंगे ना। ओके सर ठीक है। हाँ, समझ में आ रहा है ना, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख दिया, x2 हाँ और सर -1 के लिमिट टेंड करके कुछ भी डाल दो फिर तो। नहीं देखो हाँ भाई किसी भी इक्वेशन में कुछ भी कर दो ऐसे तो लिमिट इज लाइक अनदर थिंग, वो बाद में आएगा तो देख लेंगे। इट्स लाइक अनदर पावरफुल टूल बट वेरी सिंपल टूल, पर बहुत ऑब्वियस टूल है। लाइक एक 7th 8th का स्टूडेंट भी वैसे ही समझेगा जैसे 11th एंड 12th का स्टूडेंट समझेगा। इतना ऑब्वियस चीज है लिमिट कि तुम इसके पास जाओगे तो वैल्यू क्या होगी, दैट इज ओनली व्हाट लिमिट सेज। बट अभी सेंस नहीं बनता बिकॉज द सिंपल थिंग इज दिस इज एन इक्वेशन, राइट? दिस इज एन इक्वेशन, तुम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू चेक कर रहे हो। एब्सोल्यूट इज टेक्निकली रॉन्ग टर्म। एब्सोल्यूट मतलब होता है कि उसका मतलब नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दो, पॉजिटिव तो रहने दो, वो अलग चीज है। मैं बोल रहा हूँ कि इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू वो चेक करो। द एग्जैक्ट वैल्यू व्हेन दिस बिकम्स 0 देन ओनली वी डील विद दिस क्वेश्चन। सो एग्जैक्ट वैल्यू बिकम्स 0 एट दीस टू एंगल्स ओनली, इन फैक्ट 3 एंगल्स, बट ये वाला जी हट जाता है बिकॉज़ डिनोमिनेटर यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, आई गेस लाइक एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस वन। सो लाइक लेट मी राइट डाउन अनदर क्वेश्चन हियर। तो पहले सर सपोज अगर सिर्फ साइन और कॉस होता तो हम आंसर कैसे लिखते? सिर्फ साइन और कॉस रहता तो आंसर देखो लिखने के लिए तुम कैसे भी लिख लो, डजंट मैटर। इन केस इन दोनों को कंबाइन करना चाहते हो तो इसी से कर लेते हैं, n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। इसके लिए अलग से लिख देते हैं 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 6। यूनियन करके? हाँ यूनियन कर सकते थे, कॉमा करके लिख सकते थे, मतलब वो इतना मैटर नहीं करता है टिल द टाइम वी अंडरस्टैंड थिंग्स। बिकॉज जैसे मैं बताया था क्वेश्चंस तुम्हारे पास आने के लिए वैसा नहीं आएगा कि कैसे लिखना है उसको, सब्जेक्टिवली आएगा, नहीं उसकी अंडरस्टैंडिंग आएगी कि -3 पाई से 3 पाई तक जितने भी एंगल्स आ रहे हैं उनको सम करो, कितने सारे एंगल्स आ रहे हैं, समझ रहे हो ना? उस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। So you just have to understand and you have to develop understanding of those kinds of things, कहाँ कहाँ पे हो रही है, कैसे कैसे हो रही है। बट साइड बाय साइड हम लोग लिखना इसलिए भी उसको सीखेंगे थोड़ा शॉर्टर फॉर्म में कि हमारा बस प्रैक्टिस हो जाए, दिमाग थोड़ा खुलते रहे, और कुछ नहीं है। ओके, हैविंग सेड ऑल दिस थिंग्स, इन केस यू वांट टू कंबाइन देम तो इन दोनों को कंबाइन कर दो या इन दोनों को कंबाइन कर दो, इसको अलग छोड़ दो। इन केस इन दोनों कंबाइन किया इसको अलग छोड़ दो, इन केस इन दोनों को कंबाइन किया तो इसको अलग छोड़ दो। Okay, and just for clarity, he's asking about the question when denominator was not there. Okay, so उस केस में तीनों आंसर आए थे, इन दोनों कंबाइन करके इसको अलग छोड़ दो या इन दोनों कंबाइन करके इसको अलग छोड़ दो या फिर तीनों को अलग अलग लिख दो। ऑल द थिंग्स आर करेक्ट। इनकेस ऑप्शंस हैं तो ऑप्शन में तुमको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से फॉर्म है जो कि करेक्ट है। उसमें हो सकता है कि तीनों फॉर्म करेक्ट हो, तीनों ऑप्शंस करेक्ट हो सकता है कोई ऑप्शन में मिस प्रॉब्लम हो, तुमको सारा चीज चेक करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो क्वेश्चन वाइज देखेंगे, पेपर आएगा तब देखेंगे, अभी रहने देते हैं। अभी उस तरीके से सोचेंगे तो गलत हो जाएगा। थियरी डेवलप करते हैं, जब पेपर आएगा तो क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, सो लाइक लेट मी पुट डाउन अनदर क्वेश्चन हियर। इसको मैं हटा रहा हूं, मेरे ख्याल से नोट डाउन सब लोग कर ही चुके होंगे। ठीक है, सो इसको मैं हटा देता हूं। लेट मी पुट डाउन अनदर क्वेश्चन से दिस वन। Okay, so what should be the answer of this one? सब लोग 2 मिनट निकाल के बताना। इनफैक्ट टू बी मोर प्रॉपर व्हाट आई विल डू इज, ठीक है, व्हाट इस आंसर निकालो, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो बहुत अलग अलग वैरायटी के सेट हो सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 0, इसका आंसर तुम लोग निकालो, देखो क्या हो रहा है। ओके, आई विल illustrate the solution to this one and then I'll ask question, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, so what I did here was कि 4 sin square theta minus 1 है, इसको लिख दिया मैंने 2 sin theta minus 1 into 2 sin theta plus 1, which implies sin theta will be equal to plus half और माइनस हाफ। प्लस हाफ का मतलब हो जाता है पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6। माइनस हाफ का मतलब हो जाता है माइनस जो भी 2 एंगल मीटर के लिए आ जाएगा। तो इस पार्ट से हम लोग को ये चारों एंगल्स आ रहे हैं। नाउ cos 2 थीटा इक्वल टू -1 भी ट्रू है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम 2 थीटा को लिख लिए 2n, मतलब cos 2 थीटा कब -1 होता है, सिर्फ ही साइन होता है। तो 2 थीटा विल बी इक्वल टू 2n + 1 पाई।
थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 2 डिवाइड कर दिया बस 2 से दोनों साइड n पाई प्लस पाई बाय 2 हो जाता है n पाई a प्लस पाई बाय 2 n पाई a प्लस पाई बाय 2 ये दोनों एंगल्स आ जाते हैं, ठीक है। यस सर। तो यस सर। कोई भी आंसर करो इसका से सर मतलब अच्छा ऑलराइट, हो सकता है कुछ साउंड में प्रॉब्लम हो। ओके गौरीश, गौरीश यस सर। गौरीश आर ऑल दिस 6 एंगल्स, अच्छा डिनोमिनेटर हटा करके √3 तो आ ही नहीं रहा, 60 एंड दिस वन नहीं आ रहा है। सो एनीवेज आर 6 एंगल्स करेक्ट एंगल्स? सुनाई नहीं दे रहा हूँ। अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मैंने यहाँ प्रेजेंट किया है वो सारे करेक्ट आंसर्स हैं क्या? यस ऑलराइट, मतलब आंसर देंगे। नो नो सर। ऑलराइट बोले तो बताओ नो क्यों बोल रहे हो? सर tan से प्रॉब्लम करेगा 90 पे 90 प्रॉब्लम 90 पे मतलब वो क्या होता है ना कि हमारे यहाँ पे हिडन है ये चीज, लेकिन हम बहुत बार मिस कर जाते हैं, वो दिखता नहीं है। tan थीटा 90 या फिर -90 ये वाला एंगल एज्यूम कर ही नहीं सकता है, ये हमको तो स्टार्टिंग में ऑब्जर्व कर लेना है। सो tan थीटा इक्वल टू √3 सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, वो तो प्रॉब्लम था ही, इनकेस √3 आता तो देखो एंगल आया नहीं। tan थीटा 90 और माइनस जैसे लिख दिया डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर कहीं पे भी tan थीटा लिख दिया, थीटा कैन नॉट बी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, थीटा कैन नॉट टेक दीस टू एंगल्स। तो पहले ही हमको ये दोनों तो दिमाग से रख लेना चाहिए कि हटेगा, ये दोनों गया, बच गए ये 4 एंगल्स, सो दीस 4 आर करेक्ट एंगल्स। ओके, तो इसका सॉल्यूशन लिखना होता तो हम कैसे लिखते बताओ कोई भी? n pi plus minus pi by n pi 6 plus minus pi by 6 6 पाई बाय 6 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6, n पाई से यहाँ पे आएंगे प्लस से ये माइनस से ये, n पाई से यहाँ पर आएंगे प्लस से ये बीच वाला माइनस से ऊपर वाला, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हैं। सबको इक्वालिटी क्लियर है? यस सर। यस मैंने एक चीज पूछनी थी, जब मतलब आपने sin थीटा इक्वल टू sin फाई से ही शुरू किया था ना कुछ ऐसे? साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई से, अच्छा जो नहीं नहीं सर, स्टार्ट आज का लेक्चर sin थीटा इक्वल टू sin साइन वैसे करेक्ट, ठीक है। सर कुछ नहीं, मैं लेट ज्वाइन किया था थोड़ा सा। ओके फाइन फाइन ओके, वही किया था, उसी के बाद थोड़ा इलस्ट्रेट किया, फिर क्वेश्चंस पे आ गए अंडरस्टैंडिंग के लिए कि डिनोमिनेटर ये सब कैसे लेना है, किस तरीके। ठीक है सर। ऑलराइट, ये पीछे से आवाज जिसका होगा थोड़ा ना म्यूट कर लें। ओके फाइन, सब कर ही ले रहे हो सही, मेरे ख्याल से हार्डली 1 मिनट गया है। सो एनीवेज लेट्स मूव अहेड विद दिस क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन में एक काम करता हूं मैं, इन द सेम क्वेश्चन व्हाट आई विल डू इज आई विल चेंज दिस क्वेश्चन टू ग्रेटर देन 0, ठीक है, फेयर इनफ। आई विल चेंज दिस क्वेश्चन टू ग्रेटर देन 0, फिर देखेंगे ग्रेटर देन 0 को हम कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। तो मैं अब इसको हटा रहा हूं, थोड़ा देर में इसको भी हटा रहा हूं। ओके, it's a tough question. I should have started with an easier question. In fact, I will start with an easier question simply because पहले theory clear कर लेते हैं, उसके बाद इस पे आ जाते हैं। मैं इसको भी हैंडल करना इतना टफ नहीं है, just is slightly tougher than other questions because tan theta को काउंट करना थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। So comparatively, so like let's start with an easier question जिसके हम clear understanding ले लें, उसके बाद इस पे आ जाते हैं, इसी को रहने देते हैं। So question is this one, sin theta minus half into cos theta minus √3/2, ठीक है। सपोज कल अभी इजी रखते हैं, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले, इजीएस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स। ओके, ठीक है, इजी प्रॉब्लम, सब लोग आराम से देख भी पा रहे हो कैसे करना है क्या करना है। सो मैं डायरेक्टली स्ट्रेट कर देता हूँ। अब ग्राफ से इन सब चीजों में डील करना स्लाइटली टफ इसलिए होता है कि sin थीटा cos थीटा सबके ग्राफ डील करना थोड़ा सा क्लमजी लगता है, टाइम टेकिंग लगता है। क्वाड्रेंट से तुरंत हम एंगल पे अटैक करते हैं, चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं फास्ट और फिर हम सॉल्व कर लेते हैं। इट्स लाइक योर ब्रेन वर्किंग वेरी फास्ट, दैट्स व्हाई आई प्रेफर क्वाड्रेंट्स। हैविंग सेड दैट, वंस अगेन इनकेस प्रेफर करते हो कोई मेथड वही पसंद करते हो, चेंज करने की बहुत जरूरत नहीं है, हो जाता मैनेज, ठीक है। नाउ कैसे करेंगे देखो इसको। नाउ सबसे पहले ये देखो sin थीटा एंड cos थीटा बोथ आर कंटीन्यूअस फंक्शंस, है ना, बोथ आर tan थीटा इज नॉट कंटीन्यूअस, राइट, मतलब पूरे डोमेन में कंटीन्यूअस नहीं है, पूरे डोमेन, फिर गलत टर्म यूज कर रहा हूं, पूरे x पे कंटीन्यूअसली ब्रेक कर जाता है कर्व, लेकिन अदरवाइज ये दोनों फंक्शंस तो पूरे कंटीन्यूअस x पे एंगल्स पे कंटीन्यूअस, ठीक है। नाउ sin थीटा हाफ कहां पे होता है देखते हैं, हाफ होगा यहां पर और यहां पर। cos थीटा √3/2 कहां पे होगा,
तो cos थीटा √3/2 यहाँ पर एक होगा। तो यहीं पे आ जाएगा एक तो और यहीं एक पे आ बिल्कुल जाएगा, इतना ही नीचे। एक नीचे आ जाएगा। थोड़ा इलस्ट्रेशन के लिए देखो, यहाँ पे डबल एंगल कर दिया, सिंगल यहाँ पे काम आ जाएगा चीज, ठीक है। नाउ अब इसके अकॉर्डिंगली हमको देखना है कि कब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो मैं 2 स्टेप में दिखाऊंगा, पहले जो लेंग्थियर है, दूसरा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लाइन में आंसर दे, ठीक है। दोनों ऑब्वियस मेथड से। जो लेंग्थियर है उसमें क्या करेंगे, दोनों की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, ठीक है। जो वेवी कर्व का भी डेवलपमेंट होता है, वेवी कर्व का भी डेवलपमेंट यहीं से आता है, सेम मेथड से होता है। और वेवी कर्व का जो डेवलपमेंट फाइनल स्टेज को लीड करता है, ऑलमोस्ट सेम चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, साइन थीटा मतलब व्हेन इज टू क्वांटिटीज का प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। टू क्वांटिटीज का प्रोडक्ट ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा जब दोनों पॉजिटिव होगा या फिर दोनों नेगेटिव होगा, ठीक है। पहले हम देखेंगे साइन थीटा हाफ से बड़ा कब है। साइन थीटा हाफ पे यहाँ और यहाँ है, थोड़ा वैल्यू से एडजस्ट करेंगे। साइन थीटा कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो एक पूरे जोन में बड़ा होगा, एक पूरे जोन में छोटा होगा, ऑब्वियसली, है ना। साइन थीटा हाफ से बड़ा कहां पर है, तो क्लियरली दिख रहा है कि इन केस इसका पॉजिटिव लेना है, तो यहाँ पता है कि ये पॉजिटिव है, ये पूरा जोन में पॉजिटिव है। मतलब अलग अलग कलर से यूज कर लोगे तो और आसान दिख जाएगा, बट ये पूरा जोन क्या है, ये पूरा जोन पॉजिटिव है और ये पूरा जोन नेगेटिव है, ठीक है। तो ये एक जोन है, ये एक जोन है, ये 3 जोन है, ठीक है। 3 जोन है हमारे पास, तो हम लोग 3 जोन में अलग अलग लिख देते, ज्यादा अच्छा रहेगा। इस पूरे जोन के लिए ये प्लस लिख दिया, इस पूरे जोन में क्या हो जाता है ये माइनस, इस पूरे जोन में भी क्या हो जाएगा ये माइनस। तो जोन्स कौन कौन से, एक ये ऊपर वाला, ये वाला भी जानबूझ के कर दिया बिकॉज यहाँ कॉस भी डिस्टर्ब करेगा, वरना ये पूरा ही नेगेटिव था। और एक ये पूरा जो बच गया, इधर भी नेगेटिव है साइन, इधर भी नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। साइन इज नॉट नेगेटिव, साइन थीटा माइनस हाफ का डिस्कशन चल रहा है। इस पूरे जोन में साइन थीटा हाफ से बड़ा है, इसलिए साइन थीटा माइनस हाफ पॉजिटिव। इस पूरे जोन में साइन थीटा हाफ से छोटा है, हाफ से 0 जा रहा है, उससे तो नेगेटिव हो जा रहा है। साइन थीटा हाफ से छोटा है, पूरे में नेगेटिव है, करेक्ट। सिमिलरली अब cos थीटा माइनस √3/2 को भी अंडरस्टैंड करेंगे। cos थीटा माइनस √3/2, cos थीटा यहाँ पे √3/2, यहाँ 0 हो जा रहा है, √3/2 हो जा रहा है यहाँ पे, राइट। cos थीटा यहाँ पे √3/2 हो जा रहा है। इस पूरे जोन में cos थीटा √3/2 से बड़ा है। जब एक जोन में बड़ा है तो दूसरे जोन में छोटा होगा, तो इस पूरे जोन में छोटा है, यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ भी नेगेटिव हो गया, ठीक है। क्वेश्चन सेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन 0 के लिए हम क्या पिक कर लेंगे, प्लस वाला जोन, तो प्लस वाला जोन ये है, ठीक है। तो ग्रेटर देन के लिए हमारे पास क्या, देखो ये मल्टी माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया। सो माइनस प्लस माइनस मींस वहां पर ये क्वांटिटी नेगेटिव है। सो हमारे ये जोन चला गया, ये जोन चला गया, ये बच गया। सो दिस जोन इज कंप्लीटली करेक्ट आंसर। तो मैं इस जोन को इंक्लूड कर लूंगा, ये करेक्ट है सर। और वो वाला डबल एरो भी एब्सोल्युटली, हाँ। बट द क्वेश्चन सेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो इक्वल टू 0 यहाँ पर है, ये भी करेक्ट है। इक्वल टू 0 यहाँ, ये भी करेक्ट है। इक्वल टू 0 यहाँ, ये भी करेक्ट है। सो दिस बिकम्स एन आइसोलेटेड एंगल, दिस इज अ कंटीन्यूअस जोन, जो कि करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो दिस इज माय आंसर। सर ये रिपीट कर दोगे, मतलब कनेक्शन एरर आ गया था तो। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। स्टार्टिंग से बोल रहे हो? यस सर, ये क्वेश्चन में ठीक है। ये बोला sin थीटा माइनस हाफ इनटू cos थीटा माइनस √3/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब होगा? ओके, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए मैंने स्ट्रेट किया कि या तो दोनों पॉजिटिव हो, दोनों मतलब ये पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव, ये पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव, या ये पूरा क्वांटिटी नेगेटिव, ये पूरा क्वांटिटी नेगेटिव। हाँ जी सर। तो पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव के लिए हम पहले अंडरस्टैंड करने का ट्राई किया कि sin थीटा हाफ कब होगा, ठीक है। ठीक है sin सर, थीटा हाफ कब होगा, कर ओके। लिया, ठीक है। cos थीटा √3/2 कब होगा? यस सर। cos थीटा sin थीटा दोनों कंटीन्यूअस फंक्शन, इसलिए होगा क्या कि एक जोन में ये पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद दूसरे जोन में पूरा क्वांटिटी नेगेटिव रहेगा, ठीक है। इसे वे भी करके काम करता है। एनीवे यहाँ पर क्लियरली हल्का सा करके एक मिनट पीछे वाला म्यूट कर लेना, मैं बोलते रहा, कोई बात नहीं है, ठीक है। ये पूरे क्वांटिटी में देखोगे, इस पूरे जोन में sin थीटा हाफ से बड़ा है, थोड़ा वैल्यू देखोगे तो क्लियरली दिख जाता है। यहाँ पे 1 होता है, यहाँ √3/2 होता है, क्लियरली हाफ से बड़ा है पूरे जोन में। यहाँ प्लस हो गया ये पूरा क्वांटिटी, यहाँ पे इस पूरे जोन में नेगेटिव है ये वाला, तो यहाँ माइनस लिख दिया, यहाँ माइनस लिख दिया। 2 जोन्स थे इसलिए 2 अलग अलग जगह माइनस लिख दिया। इन अ सिमिलर वे cos थीटा माइनस √3/2 देखोगे तो इस पूरे जोन में ये पॉजिटिव है, इस पूरे जोन के बाहर ये क्या है, नेगेटिव। थोड़ा वैल्यू एडजस्ट करो दिख जाएगा, 0 पे 1 होता है cos थीटा, तो 1 माइनस √3/2 पॉजिटिव है। ये पूरा जोन में पॉजिटिव है,
बाकी सारे Yes, sir. नेगेटिव। Yes, sir. तो इसके कारण हो क्या रहा है, हमारे पास क्वेश्चन था ये दोनों का प्रोडक्ट का पॉजिटिव या फिर जीरो है। तो पॉजिटिव कब हो पाएगा, जब ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जा रहा है। Yes, sir. ठीक है, इस दोनों जोन में तो नेगेटिव है इसका प्रोडक्ट, इसको तो हटा ही देंगे दोनों जोन्स को। फर्दर सेज वेयर दिस प्रोडक्ट कैन बी इक्वल टू जीरो, तो उसके Okay, sir. ये तीनों एंगल्स पे पिक कर लेंगे। Yes, sir. This becomes an isolated angle and this becomes a continuous complete zone. Okay, sir. ठीक है, अब देखो ये आंसर पता चल गया, तो इसके बाद तुम लोग के माइंड में ऑब्वियसली एक क्वेश्चन आता है जो तुम लोग शायद समझ भी रहे हो कैसे करना है, कि सर इसको लिखें कैसे, है ना, व्हाट इज द बेस्ट वे टू राइट दीस थिंग्स। सबसे पहले मैं पहला पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ, कैसे लिख के बहुत मैटर नहीं करता है। सबसे पहले तुम अंडरस्टैंड कर रहे हो जोन कौन सा है, आंसर कैसे है, कैसे लाना है करेक्ट आंसर। Because once again your questions will be somewhat of this variety. How many integral solutions are there? How many integers between 1 and 10 are there which satisfies this one? तो तुमको समझना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक वाला जोन है, इसको कैसे हम समझे। और जैसे सपोज कर लो ये वाला एंगल हमको पता है 5 पाई बाई 6 क्या है, 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 है। हमारी वो अंडरस्टैंडिंग ज्यादा मैटर करती है rather than how do we write it. Having said that, writing this is also like a very simple stuff, तो उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। मान लो मुझे इसी जोन को पूरा लिखना है, पहले मैं इस जोन को कंप्लीट दिखा रहा हूँ जो तुम लोग को भी क्लियर होगा, बट एनीवेज लेट मी राइट इट डाउन। बहुत अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, 2n पाई से लिख सकते हैं, n पाई से लिख सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। आई विल यूज 2n पाई बिकॉज 2n पाई इज गोइंग टू मेक माई टास्क इजियर, इसलिए 2n पाई से करेंगे तो कैसा होगा, देखो 2n पाई प्लस, पहले मैं इस एंगल पे पहुंचूंगा, ठीक है, जहां से हमको बड़े एंगल पे जाना है, 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 6। यहां से कहां जाना है, सेम n के लिए 2n पाई प्लस, अब इससे आगे बढ़ के हमको यहां पहुंचना है, तो इससे और पाई आगे बढ़ के बढ़ेगा 11 पाई बाई 6 11 पाई बाई 6 प्लस 11 पाई बाई 6 एंड बोथ क्लोज्ड। ओके, फिर फर्दर इसको लिखने के लिए हमको ऐसा भी लिखना पड़ेगा, यूनियन, यूनियन में एक बड़ा यू आ जाता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर भी लिखना पड़ जाएगा, बिकॉज सारे n के लिए आ जाएगा आंसर। दिस इज सिंबल फॉर यूनियन, लॉट्स ऑफ सेट्स बीइंग यूनाइटेड, और यूनियन कर रहे हैं ऐसे मान लो। n बिलोंग्स टू इंटीजर बिकॉज सारे n यहाँ पे हमारे पास अलाउड हो जाएंगे, हर n के लिए आंसर आ जाएगा, एक 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 जोन आ जाएगा, लेकिन ये भी हमारे पास आंसर है, इसलिए एक और यूनियन करना पड़ेगा, और उसके साथ ये आंसर कैसे लिखेंगे, कोई और यूज करना है, कर लो 2k पाई प्लस, इसको कर्ली ब्रैकेट कर लो बिकॉज कर्ली ब्रैकेट सिंगल एलिमेंट के लिए होता है, तो 2k पाई प्लस पाई बाई 6। कर्ली ब्रैकेट सिंगल, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, कुछ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स के लिए होता है, रादर देन कंटीन्यूअस सेट होता है, सो कर्ली ब्रैकेट यूज कर सकते हो। इस कर्ली ब्रैकेट को ऐड करते चले जाओ, मतलब इस टाइप के एलिमेंट्स ऐड होते चले जाएंगे, 2k पाई प्लस 5 बाई 6, और ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। So this could have been an answer, but once again these things do not matter at all. समझना जरूरी है तो समझ जाओ अभी, लेकिन ज्यादा मैटर करता है तुमसे ये से पूछेगा कितने इंटीग्रल वैल्यूज हैं, क्या उसका ये होगा, उसमें x बताओ कितना कैसे बिहेवियर ले रहा है ना, उसमें और इसमें कॉमन सॉल्यूशन है कि नहीं, ठीक है। तो दिस चेक योर स्मार्टनेस ओवर दोस काइंड्स ऑफ थिंग्स। जैसे मान लो ये इक्वेशन दे देगा और फिर बोलेगा इसमें और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 में कोई कॉमन सॉल्यूशन है कि नहीं, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 में कोई कॉमन सॉल्यूशन है कि नहीं, ठीक है। ये भी x में मान लो लिखा हुआ है, वहां भी x में लिखा हुआ है, तो rather than solving this and then simplifying with x square minus 3x plus 2 equal to 0, पता है कि x square minus 3x plus 2 का दो ही सॉल्यूशन होता है, 2 और 1, दोनों को पुट करके देख लो, आइडिया मिल जाएगा क्या करना है। ओके, सो चेक योर स्मार्टनेस ओवर दीस काइंड्स ऑफ थिंग्स, कि क्या तुम पूरा एकदम सीख लियो, रट लियो तो सॉल्व करने आ रहे हो, या तुम समझ रहे हो क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा, मैं जल्दी से आंसर निकाल दे रहा हूँ by understanding the question in a right way. Okay, so they do those kinds of things in these kinds of problems. सर अभी अपनी क्या का करेक्शन इशू आया था कोई? कुछ नहीं, ऐसे ज्यादा नहीं, बस खाली यही पॉइंट बोला था कि क्वेश्चंस मोस्टली इसके ऊपर नहीं, इसमें इसके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आती है, ठीक है निवेश, जो मैं स्टार्टिंग से बोले जा रहा हूँ पॉइंट। एनीवेज, तो मेरे ख्याल से इक्वेशन करना अभी ये समझ गए हो, लेकिन हाँ मैंने बोला था इसको फास्टर भी कर सकते हैं, बहुत ऑब्वियस रीजन से। देखना है फास्टर कैसे करेंगे। मैं इस चीज को मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वन, फास्टर कुछ खास है नहीं। मैंने बोला था ये एंगल, इसके बाद ये एंगल है, एक ये एंगल है, फिर उसका देखिए ये एंगल है, राइट। इतना तो यहाँ से देख के पता चल ही जाता है। नाउ वी नो दैट sin थीटा एंड cos थीटा बोथ आर कंटीन्यूअस,
तो बाय वर्च्यू ऑफ दैट हम सिंपली क्या कर लेंगे, कोई एक जोन देख लेंगे। यहाँ पर जैसे इस जोन में आएंगे तो यहाँ पे 0 मान लो पुट कर देते हैं। 0 पे ये 1 है, ये पॉजिटिव है, 0 पे ये नेगेटिव है, तो इस जोन में हमको पता आ गया नेगेटिव आ गया, इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ गया। तो फंक्शंस बीइंग कंटिन्यूअस इस पूरे जोन में चीजें कहानी चेंज नहीं करेगी। एक भी पॉइंट पे आ गया तो हर पॉइंट पे सेम कहानी रहेगी। ओके, ये सब अंडरस्टैंडिंग दिमाग में है, इस कारण से ऐसा बोल पा रहे हैं, और कुछ रीजन नहीं है। उसके बाद इस जोन पे आएंगे तो देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये भी चीज 0 हो रहा था, यहाँ पर ये भी क्वांटिटी 0 हो रहा है, तो रिपीटेड रूट टाइप का हो रहा है, 2 बार रूट रिपीट कर गया, ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, 2 बार रिपीट कर गया, तो जो भी ये साइन है वही सेम साइन यहाँ कंटिन्यू कर जाएगा, सेम वे एज बेबी कर। सर ये कैसे, ये बताना सर ये दोबारा बता दो। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं ज्यादा आसान करता हूँ, मैं ये बताता हूँ, तुम लोग सोचो कैसे हो करेंगे, ये चीज क्यों हो रहा है, उसका मैं एक्सप्लेन करूंगा। Isn't that more fair? यस Why are these things happening? आराम से टाइम लो, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग्स। अभी मैं रिजल्ट बता रहा हूँ, कल मैं डिस्कस करूंगा, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। एनीवेज व्हाट आई वाज सेइंग वाज, ये माइनस है, यहाँ पर 2 बार रिजल्ट आ गया, इसलिए ये भी माइनस हो जाएगा, सेम साइन, और यहाँ पर एक ही रिजल्ट आ रहा है, सो दिस विल बी ये विदाउट हार्डली लाइक। तो क्योंकि साइन चेंज तो जैसे अगर 2 बार ओवरलैप कर रहे हैं तो 2 बार साइन चेंज होगा, बट अगर एक ही बार आ रहा है तो सिर्फ एक ही बार साइन चेंज होगा, जैसे वेवी कर्व में होता है। राइट, उन लोग शायद इसलिए पूछ रहे बिकॉज़ उन लोग बेबी कर्व वाला चीज का भी डील नहीं किया, मुझे समझ में आ रहा है ऑब्वियसली, दैट्स व्हाई आई वाज गोइंग टू पुट अनदर क्वेश्चन टू देम एज वेल। ठीक है, वो करेंगे अपने आप समझ में आता है, तो इसलिए मैं उनके लिए पूरा फ्रीडम दे दिया हूं। अभी ये सब आंसर करके भी बहुत अच्छे से नहीं समझ में आता अनलेस अंटिल वी डू दोस काइंड्स ऑफ थिंग्स, दैट्स व्हाई आई लीव देम विद द क्वेश्चंस। एनीवेज ये आ गया, ये तीनों को पिक करना था, प्लस ये जोन पिक करना था, डायरेक्टली आंसर आ गया। ओके, तो थिंग्स कैन बी डन वेरी फास्ट, बट अंडरस्टैंडिंग उनकी लेनी पड़ती है। तो अभी मैं इसके एक लेवल और ऊपर जाना है, मुझे 2-3 और क्वेश्चन करने हैं, वो भी जानबूझ के रोक रहा हूं सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस वन। और कल वाला जो क्वेश्चन था, इन केस उसकी अंडरस्टैंडिंग अब ज्यादा अच्छे यहाँ से मिल गई है, फिर से एक बार ट्राई कर सकते हो, उन्हीं क्वेश्चंस को वापस से ट्राई करो, ज्यादा मजा आ जाएगा। एनीवे बेबी कर्व के लिए कुछ क्वेश्चंस दे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। x - 2 का स्क्वायर, x - 3 का क्यूब अपॉन x into x - 5 का पावर into x plus 1 का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल। जिन लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, ये सोच ट्राई करना कि ये कब ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 है, जोन निकालने का ट्राई करना, automatically you will understand both the parts. And tomorrow when I will come, I will first explain this wavy curve, then I will come down to this one, I will complete this one. तो बहुत लोगों को नहीं पता होता है ना, तो they actually get stuck in this one. It's not so obvious, but एक बार इस पे struggle करोगे तो कल मेरे बताने में तुम लोगों को बहुत मजा आएगा। ठीक है, जिनको पता है fair enough, कोई बात नहीं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, बहुत क्वेश्चंस है ऑलरेडी करने के लिए, क्योंकि जो सिखाना था मैंने इसमें सिखा दिया है। इसके अलावा जो चीज कराऊंगा ये कि टफर क्वेश्चंस को कैसे फास्ट हैंडल करें, और कुछ नहीं। ठीक है सर, जो आपके क्वेश्चंस थे आपने दिए थे कल और परसों, सर मतलब जैसे सॉल्व करके केसेस 27-28 बन रहे थे, आपकी वैल्यू 7-8 आ रही थी, तो उसमें डाल के देखना बेटर रहेगा या करना ही चाहिए सॉल्व? मैं देखो हमेशा बोलूंगा क्वेश्चन आने दो, उसके बाद में बता, बिकॉज क्या होता है ना, क्वेश्चन आने के बाद तुमको देखना पड़ता है कि कैसे कैसे किया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंगली बेस्ट मेथड क्या है ना। जनरलाइज नहीं, चीजों को जनरलाइज तुम लोग भी नहीं करते, मुझे पता है। इट्स लाइक अभी बस मैंने बताया था कि मान लो इसी के साथ एक क्वेश्चन आया था कि x² - 3x + 2 = 0 है, और ये भी दिया हुआ है, इट्स बेटर कि x² - 3x + 2 को सॉल्व करो, उसे x 2 और 1 आएगा, उसको पुट करके देखो। बट इन केस समथिंग एल्स इज देयर, कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन है, देन यू हैव टू डू ऑल दीस थिंग्स एंड फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर, सो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट हैज बीन आस्क्ड। ओके सर अगर कल आप उस क्वेश्चन में 100 छोड़ देते फिर बुरी हालत हो जाती। क्या छोड़ देते तुम? हाँ, मैं समझा था उस समय, मुझे लग रहा था कि बहुत टफ पड़ने वाला है, इसलिए मैं उसको चेंज कर दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, प्रैक्टिस हुआ था, थोड़ा टाइम पास कर लेते, मजे कर लेते, और क्या। सो एनीवेज अभी तुम लोगों को जो टास्क दिया बहुत लोगों ने नहीं किया, सो आई विल स्टॉप हियर, और फिर उसके बाद तुम लोग इस चीज को कवर करो एंड आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग टुमारो। ओके, और अभी तुम लोग बुक में कवर करने के लिए सॉल्यूशन वाला जो वो था ना, सॉल्विंग इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस वाला, वो चैप्टर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो कौन सा, मतलब जनरल एक्सप्रेशन कह रहे हो? हाँ, जनरल लोनी से जो जनरल एक्सप्रेशन वो भी कवर कर सकते हो, उसके आगे मत बढ़ना, मतलब अनलेस अंटिल द टॉपिक्स हैव बीन टॉट। मुझे अभी कुछ और कराना है, 1-2 क्लास 3 क्लास, इस हफ्ते तक सारा चीज एनीवेज कंप्लीट हो ही जाएगा, उसके जितना भी है बुक कवर करते रहना। सर सीरीज
तो एक ही था, बता दिया हूँ, उसको सॉल्व कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, चलो देन